Yeah, good morning everyone. In tutorial class, initially I would start with a small quiz as we had in our last tutorial class, and it will contain only I think 7 or 8 simple questions based on your understanding of relations. So be very attentive, take part in it so that even if you have few doubts, so they may get clarified using that itself, and then I will give you a time so that you can ask your doubts in case of any chapter 1 or 2, whatsoever syllabus we already have covered. So be ready with pen and paper. Let's begin. So here comes your first question, and you know the basic idea. Just write your answer in the chat box. Option A, B, or C, D. And do try it yourself and take some time. और तुक्का नहीं लगाना है, and do not copy the answers being given by the others. It's for your own learning. Okay, let's see. Option Archita is saying C. C. Okay. So what is A minus B? Are you getting? A minus B is 2 and 4. So that is simply 1. And what is next one? B minus C. So B minus C would be this minus this, 2 and 5 removed. So that will be 4 only. So I need their Cartesian product. So Cartesian product means this, and how we actually represent this situation, that 1 goes with 4, 1 with 4. So answer is C only. Are you all sure about this? Or is it option B? Think about this. It is the difference. This is a set and this is a set. The Cartesian product of two sets is a set itself. So now is there anyone who would like to change the answer to B? The correct answer is B. 1 4 को देखकर सिर्फ नहीं चलना है. Understand the difference between these two notations as well. So difference is coming to be a set actually. इसलिए ये ब्रैकेट भी रहेगा. Your required answer. So I think none of you has opted for option B. सभी ने C ही सोचा. Anyway, अगर doubt है तो you can ask, or I will proceed for next question quickly. Here comes question 2.
What's the answer? ओके, ऑप्शन बी या सी अभी आया है. आई एम स्टिल वेटिंग. यस. व्हाट अबाउट द अदर्स? Check out the definition. X is related to y and y is equal to 3x. So x and y both are from this set. So when x is 1, clearly y is 3. When x is 2, y is 6. When x is 3, y is 9. And when x is 4, y is 12, which is not a part of this set. So don't you think so? These are the elements in our set. So the relation R will become 1, 3, 2, 6 and 3, 9. What's the answer? Yes. अब clear हुआ? It is none of these. It is the option D. जिन्हें B लगा था, थोड़ा सा लॉजिक भी साथ में लगाइए. आपने वो देखा कि चलो 3 टाइम्स हो रहा है तो 1 से 3 हो गया, 2 से 6 हो गया, बट देयर ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट. A कॉमा B इज डिफरेंट फ्रॉम B कॉमा A. रिमेंबर दैट. तो ये बेसिक फंडामेंटल चीजों की ही मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ. तो हमेशा ये नहीं है कि ऑप्शन A B C में होगा. तो नन ऑफ दिस इज पॉसिबल. एनीवे, क्वेश्चन नंबर ये 2 था हमारा. Now, question number 3 on your screen. सोचिए ध्यान से, लॉजिकल है. Yes. Any answer? And you can expect the similar question in your unit test or examination as well. XY integer हैं, x square plus y square is now less than or equal to 4. तो बस अब आप एक वे क्या है, आप इन ऑप्शंस में से पिक करना शुरू कर लीजिए. और अदरवाइज सोचिए
इंटीजर्स हैं, व्हेन एक्स इज 0, तो चेक करिए आपके पास y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, वही आपको सोचना है। तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो जाएगा, -2 से लेकर 2 के बीच में y आ सकता है। तो व्हेन x इज 0, y इज अगेन टेकिंग फ्यू इंटीग्रल वैल्यूज, तो x 0 तो रहेगा रहेगा। व्हेन x इज 1, what will happen, 1 square plus y square less than or equal to 4, that will give me y square less than or equal to 3। और आप चेक करिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये अगर आपको याद नहीं हो तो एक रूल याद दिलवा देता हूं। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब ये कंडीशन होती है, ये 10th में कहीं ना कहीं आपने यूज किया होगा। और दिस गिव्स मी -√3 से लेकर √3 के बीच में y है। तो चेक कर सकते हैं देयर आर फ्यू इंटीजर्स जो लाई करते हैं, तो 1 भी मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर मैं x को -1 भी रख देता हूं, यहीं पर एक मेन लॉजिक सोचने वाली बात है। ओ सॉरी, ये लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो सेम कंडीशन आ रही है। व्हाट डज दैट मीन, x कैन बी -1 ऑल्सो। अब एक बार मैं जरा x को 2 रखता हूं, x की जगह 2 रखा है, तो वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, तो एटलीस्ट इससे मेरे पास y 0 तो आ जाएगा, विच इज इंटीजर, मीन्स x इक्वल टू 2 एंड -2 इन अ सिमिलर लाइन satisfy this condition। what about say x is equal to 3, अगर मैं x को 3 रख देता हूं, y स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 4 - 9 -5। square of a number cannot be negative। yes, अब क्लियर हुआ है, तो फ्यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी गिवन द करेक्ट ऑप्शन। आइडिया लग गया होगा, आपसे डोमेन पूछा था, सो ऑप्शन सी। ये सारी वैल्यूज जो मैंने लिया है, ये समझाने में टाइम लगा है, अगर आप लॉजिकली करेंगे तो आई मे नीड नॉट टू राइट डाउन दी होल सॉल्यूशन लाइक दिस, और आप क्विक एक एनालिसिस करके आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते थे। सी ऑप्शन। चेक आउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन नाउ। बहुत सिंपल है, आई एम वेटिंग। यस, ओके, ऑप्शन सी या डी में से बताया जा रहा है। सॉरी, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है आपको ये, तो सोच के देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। नेचुरल नंबर है तो x एंड y बोथ बिलोंग्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो व्हेन x इज 1, 1 + 2y इज 8। कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आइडिया लग चुका है।
y इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो 1 तो मेरे में आएगा ही नहीं, तो ये रिजेक्ट वैसे ही हो गया लास्ट ऑप्शन। अब मैंने x को 2 रखा, इतना सा देखते ही पता चल रहा है कि x जो है y जो है आपके पास देखिए कितना आ जाएगा, 3 आ रहा है बेसिकली, विच इज अ नेचुरल नंबर, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन। सिमिलरली व्हेन x इज 3, इनका डिफरेंस ऑड आ जाएगा, रिजेक्टेड। व्हेन x इज 4, और इससे मेरे पास 2y आ गया 4 विच इज अ नेचुरल नंबर, ये मेरे सॉल्यूशन में आ गया। इसी तरह से आइडिया लग रहा है 5 पॉसिबल नहीं है, 6 के ऊपर एक बार देख लेते हैं। व्हेन आई पुट एट 6 अगेन आई एम गेटिंग अ नेचुरल नंबर y, ये सॉल्यूशन में आ गया। अब लगता है 8, बट जैसे ही मैंने 8 सब्सटीट्यूट किया, y आ रहा है 0 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। So the correct answer clearly is option C. Yes. So I hope जिनका थोड़ा स्टार्टिंग में जल्दी में गलत हुआ था, they must be now clear. Option C is the correct answer. 2, 4, and 6. Yeah. Question 5 on your screen. It must not take more than 10 seconds. Okay. I'm still waiting और भी आंसर आ जाएं. Very few answers are coming. That's a basic formula which I did talk about. Yes, relation फर्स्ट सेट में m, दूसरे में n एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ही तो पूछे थे। दैट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला व्हिच वी हैव लर्न। द आंसर, यस। कमिंग टू क्वेश्चन 6, which of the following is a function? Imagine the arrow diagram concept. Okay. Yes, the correct answer is, one can check it out, B and C. Normally we do not have the MCQs having only, और जनरली लेते हैं जिसमें वन आंसर होता है, बट नोट केयरफुली ए पार्ट क्यों नहीं हो सकता फंक्शन। तो क्विक रिकॉल करिए, ये ए बी 1 2 3 और 2 3 4, अब ए में क्या दिया है 1 with 2
1 with 3, बस इसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं है आगे देखने की। अगर एक लेस देन टाइप सिचुएशन आ गई, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्विकली बस इसे देखते हैं, 1 3 और ओ सॉरी, पहले तो यहाँ 1 2 3 है और 2 3 4 है। अब ये कहता है 1 with 3 एंड 2 with 4, राइट। तो इसका मतलब बी सही हो गया, अर्चिता। और एक और किसी ने भी कहा था बी सही है, निखिल। नाउ कैन यू आंसर, इज इट करेक्ट? इट इज नॉट अ फंक्शन। चेक करिए, फंक्शन के अंदर आपकी डोमेन शुड बी ऑलवेज द फर्स्ट सेट। तो ये चीज क्या नोट करना चाहिए था, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज यहां पर मिसिंग है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन है बट नॉट अ फंक्शन। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने जानबूझ के जिन्होंने बी और सी दोनों कहे थे, इसीलिए पहले कह दिया कि ये है फंक्शन। एनीवे, 1 2 3 और 2 3 4, सी वाला देख रहा हूं मैं डायग्राम, 1 से 3, 2 से 2 एंड 3 से 3। तो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर आपके पास एक ग्रेटर देन टाइप आ जाए साइन, तब इट इज अ वैलिड थिंग और सारे एलिमेंट यहाँ के यूज भी हो गए हैं, तो इट इज अ फंक्शन। एंड लास्टली, वो अब चलो आप चेक कर ही लेंगे, डी वाले के अंदर क्या प्रॉब्लम रही होगी वो देख लेते हैं। तो ए टू बी, 1 2 3 2 3 4, और एरो डायग्राम बनाते हैं। 1 with 2, 1 with 2, 2 with 3, 3 with 2 एंड 3 with 4। आई थिंक प्रॉब्लम समझ आ गई होगी क्यों नहीं है ये फंक्शन। ये यहाँ आपको ग्रेटर देन की तरह, ओ सॉरी, लेस देन वाला ऑप्शन से दिख गई है, तो इतना होते ही क्लियर है दैट इट इज नॉट अ फंक्शन। यस, तो यस, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है सुकेत। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी ओनली। एंड कमिंग टू, आई थिंक शायद ये मैंने अब लास्ट ही रखा है, 7th क्वेश्चन या 8th, लेट मी चेक। 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। Based on your understanding of a polynomial या basic function, very simple question is asked. सोचिए। यस, अच्छा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई दिस आउट। अगर एफ एक्स ये दिया हुआ है, वट इज द मीनिंग ऑफ f(1)? एक्स की जगह 1 रख दीजिए, जहां जहां x दिखाई दिया रिप्लेस 1, राइट। सो f(1) एक्चुअल में कितना आ गया, 3 के इक्वल, ये आंसर हो जाता। मान लीजिए मैंने कहा f(x) ये दिया हुआ है, सो व्हाट विल बी f(-2)? आप x की जगह -2 रिप्लेस कर देते
एंड सॉल्व इट, योर आंसर। मान लीजिए मैं क्वेश्चन अब आपसे कहता एफ ऑफ एक्स ये है, सो व्हाट विल बी एफ ऑफ वाई। एक्स की जगह वाई रख दो, ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स ये है, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए प्लस वन। एक्स जहां जहां दिखाई दिया, replace that x by a plus 1. So a plus 1, तो a plus 1 वाली टर्म मैंने बता दिया है। नाउ कैन आई हैव द आंसर? ओके, महीप ने बताया है, बट ओके चलो आरती, गुड। लेट अस चेक इट आउट। मुझे आंसर नहीं पता इसका करेक्ट, हम सॉल्व करेंगे एक साथ। अदर्स ऑल्सो प्लीज रिस्पॉन्ड करके देखिए। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपसे ये वैल्यू पूछी है। सो as we already have noted, f of a plus 1 would be x की जगह a plus 1 रख दिया। अभी मैं इसको चलो सॉल्व नहीं करता और दूसरा एक्सप्रेशन भी लिख लेता हूं, f ऑफ a माइनस 1, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना था, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। सो व्हेन आई सबट्रैक्ट देम, तो फर्स्ट वैल्यू ये थी, इसमें से माइनस करना था सेकेंड वैल्यू को। सो वन ऑफ द ऑप्शन कुड बी, मैं यहीं पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेता और उन्हें माइनस कर देता। अदरवाइज अब लॉजिक मैंने क्या लगाया, ये और ये लाइक टर्म आ गई, दोनों में से 4 कॉमन, तो a प्लस 1 और बीच के माइनस की वजह से इनके साइन चेंज। नेक्स्ट मैंने क्या देखा, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो क्या बच गया एक्चुअली, और फिर ये टर्म लिख दिया, a से a कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 8 आ गया, और ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो 8 प्लस यहाँ 1 से 1 कैंसल, इधर a से a कैंसल, तो ये 2a आ गया और इधर आ गया ये -2, तो 8 माइनस 4a। विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग? ऑप्शन ए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा टिपिकल गया है, आप अलग से इनके स्क्वायर ओपन कर लीजिए एंड सिंप्लीफाई। प्रोबेबली ज्यादातर ने शायद यही किया होगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो आई हैव सीन नाउ मेनी करेक्ट आंसर, सभी ने किया होगा डेफिनेटली। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्विज। सो मैक्सिमम आंसर आप में से किसने सही दिए हैं? अपने आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो प्लीज, जस्ट राइट योर नेम। दोज हु थिंक 7 में से जिनके एटलीस्ट 5 सही हुए थे, राइट योर नेम। फोर सही हुए थे, 4 या उससे ज्यादा सही थे आंसर। राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। एनीवन जिसके 4 या उससे ज्यादा सही थे आंसर? चलो अब बताओ, 3 या उससे ज्यादा, 3 जिनके सही थे आंसर? इज देयर एनीवन?
ओके, निखिल गर्ग 3 रहे, आरती महीप ओके, अर्चिता गुड। सो आई एम एज्यूमिंग कि मिनिमम आपके 3 सही थे, या उससे ज्यादा कितना आप कर पाए थे। चलो, कीप इट अप। नाउ दिस इज ओपन फॉर यू। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क एनी डाउट टू एनीवन। एंड मेक इट श्योर यू ऑल हैव सबमिटेड योर वर्क, पीडीएफ जो भी हैं आपके, that chapter 1 both the pdfs must have been submitted by you. If not done, do it by today itself. कोई डाउट किसी भी तरीके का? चैप्टर 1 चैप्टर 2 अभी तक जो हुआ है, एनसीईआरटी असाइनमेंट और अदरवाइज ऑल्सो। यस, एनीवन? चलो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर नॉट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स? कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं? Sir, I'm stopping the recording.